is glucose and galactose products by mammals and mammals में ये जो देखा जाता है जिससे हमें मिल्क मिलता है, then it is converted glucose and galactose. Then maltose, it is a disaccharides of glucose and does not occur to any appreciable extent in food. It is the intermediate products in the hydrolysis of starch or melting and fermentation of gram, and it is present in beer and malted breakfast cereal. बियर ये जो प्रोसेस बताइए, अगर माल्टोज ये जो प्रोडक्ट्स है, ये इस पे एक फर्मेंटेशन किया जाता है, लाइक ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स को एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट इज, और जो प्रोडक्ट मिलता है बियर, ठीक है. देन माल्टोज इज ऑल्सो अ ब्रेकफास्ट सीरियल्स. It is also used with dextrine as the sources of carbohydrate for some infant formula. ठीक, यहाँ पे डेक्सट्रीन जो है, जो इन्फेंट्स के लिए जो आर्टिफिशियल फूड जो मार्केट्स में अवेलेबल है, उसमें भी ये देखा जाता है. देन शॉर्ट चेंज कार्बोहाइड्रेट्स और ओलिगोसैकेराइड्स. Short chain carbohydrates are the dietary carbohydrates other than free sugar, are soluble in 80% ethanol under prescribed condition. That is, the naturally occurring oligosaccharides, raffinose, starcellose, Webicose, small polysaccharides such as insulin and other fructose are included in the category. Okay, girls, the short-term जो oligosaccharides है, it's easily soluble 80% in ethanol. Okay, and this is prescribed condition. Under prescribed condition, the naturally occurring oligosaccharides are present in this form. Then polysaccharides such as insulin and other fructose are included in the categories. The oligosaccharides are of plant origin. Girls, वो plant origin है. Okay, raffinose, fructose plus galactose plus glucose. जो रेफिनोज है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्रुक्टोज का, लैक्टोज का एंड शुगर का. Then starchinose is two molecules of galactose plus glucose plus fructose, that is tetrasaccharides. And vabinose are three molecules of galactose plus glucose plus fructose, that is pentasaccharides. गर्ल्स समझ में आ रहा है जो नेम्स दिए हैं वो ये किन किन का कॉम्बिनेशन होके ये एक फॉर्म हुआ है? यस मैम. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. Then polysaccharides. These carbohydrates are complex compound composed of many molecules of simple sugar. They have relatively high molecules weight, are amorphous rather than crystalline, are not sweetened, are insoluble in H2O, that is insoluble in water, and are digested with very degree of completeness. गर्ल्स, यहाँ पे जो बताया है ये पॉलीसेक्राइड्स जो है ये इजिली डाइजेस्टेबल है इन वाटर में. ये स्वीटनर्स के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. ओके, एंड इट इज सॉरी एंड आर डाइजेस्टेड बाय विथ वेरी डिग्री, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री पे ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है. देन स्टार्च, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, sorry, starch, dextrose, glycogen, and several indigestible carbohydrates are of nutritional interest. Then starch. Starch is the main storage polysaccharides of plants, and it is found in considerable amount in the dietary staples such as cereals, grains, potatoes, and plantains. ठीक है, गर्ल्स, स्टार्च जो है जो प्रेजेंट है
उसका जो स्टोरेज है वो पॉलीसेकेराइड्स में है प्लांट्स में. देन इट इज फाउंड इन अमाउंट ऑफ डाइटरी स्टेपल्स एंड सच एज सीरियल्स जो होते हैं, that which we say a high protein diet, and then it is present also in potatoes and plantains. Starch is the major carbohydrate in the human diet. Starch consists of two types of polysaccharides, amylose and amylopectin, and it is relative amount vary in different starches. Then rapidly digestible starch, RDS, it is rapidly and completely digested and absorbed in the small intestine. For example, bread and potatoes. रैपिडली मतलब जो गर्ल्स ये पोटैटोज एंड ब्रेड जो है इसमें ये रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. Then slowly digestible starch. It is like RDS is completely digested in the small intestine but more slowly. जो स्लो डाइजेस्टेबल इसलिए बोला गया है, ये डाइजेस्ट होता है बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो. दिस कैटेगरी include included starch that is properly accessible to enzymes such as proportion of that is partly malted grains. Malted grains in the sense जो grains होते हैं उसको एक न्यू प्रोसेस में जैसे व्हीट है, व्हीट को ब्रेक डाउन करके जैसे वो दलिया वगैरह जो बनाते हैं उसको माल्टेड ग्रेन्स बोला जाता है. या उसको अभी मार्केट में अवेलेबल है इजीली ओट्स, उसे भी माल्टेड ग्रेन्स बोला जाता है. एंड द सीड्स एंड इन द फूड दैट इज डेंस स्टार्च, फॉर एग्जांपल पास्ता, एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्रैनुबल स्टार्च इज रॉ फ्रूट. जो रॉ फ्रूट्स जो मिलते हैं उसमें जो है ये प्रेजेंट होता है, which are easily which is not digestible and it is the process is very slow. Then resistant starch, it is defined as the starch and starch degradation product that is escapes digestion in small intestine and becomes available for the fermentation by the microflora in the large intestine. Okay, the microflora which helps in the digestion and in digestion and excretion from small intestine. Okay, तो ये जो है गर्ल्स यहाँ पे देखो, it is defined as the starch and starch degradation product that escape digestion in the small intestine. Small intestine में digestion के लिए helpful है and it becomes available for the fermentation of microflora in the large intestine. Physically inaccessible starch, which may be found in whole or partly malted grains and seeds, and in some very dense types of processed starchy food. Dextrine. These are degradation products of starch in which the polymers have been broken down to small units to partially hydrolysis. Dextrine जो है वो easily break down होते हैं in a small unit by partially hydrolysis. They are the main sources of carbohydrate in the preparation and is orally supplements for the tube feeding. Girls यहाँ पे tube feeding is dextrine जो है, dextrine is the form of sugar. अगर कोई RT feed पर है, RT feed in the renal feed, जिसे जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है एंड दे आर नॉट एबल टू ईट देयर फूड बाय माउथ, वो अपना खाना नहीं खा पा रहा है, उसे आर्टिफिट इन द सेंस नाक में जो नली डाल के जो खाना दिया जाता है, तो अगर हमें उसको प्रोटीन देना है या ग्लूकोज देना है तो डेक्सट्रीन वहाँ यूज किया जाता है. दे यूज पाउडर फॉर्म और दे यूज इन अ लिक्विड फॉर्म. उनको वो डेक्सट्रीन जो है वो सप्लीमेंट्स वहां से उसको दिया जाता है क्योंकि दीज आर इजिली ब्रेक डाउन. ये ब्रेक डाउन इजिली हो जाते हैं क्योंकि वो तो पेशेंट है, वो लेटा हुआ है, वो तो कोई एक्शन कर रहा नहीं है या वॉक नहीं कर रहा है, बट उसके बॉडी को देना भी जरूरी है एंड उसका एक्सक्रीशन भी होना बहुत जरूरी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी होना जरूरी है. दैट्स व्हाई डेक्सट्रीन के जो सप्लीमेंट्स है वो उनको दिए जाते हैं.
गॉट इट गर्ल्स? यहाँ पे जो ये पॉइंट है ट्यूब फीडिंग वाला, गर्ल्स यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, समझ गया कि एक बार और एक्सप्लेन करूँ ये ट्यूब फीडिंग वाला पॉइंट? एक बार कर दीजिए मैम रिपीट। ओके, जो पेशेंट है वो अगर कैपेबल नहीं है अपना डाइट लेने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उसको लोड क्रिएट नहीं कर रहे। वो जैसे अगर पैरालिसिस वाला पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, उसका सर्जरी हुआ है और हमें उन्हें प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना, ग्लूकोज भी देना है, फैट भी देना है, बट ही इज नॉट केपेबल टू सिट एंड ईट हिज फूड, तो उन्हें आर्टी फीड पे कुछ दिन रखा जाता है। आर्टी फीड इन द सेंस नाक से उन्हें खाना देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी रोटी सब्जी है ये उनको नहीं दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। वो ट्यूब फीडिंग में से क्रश करके भी देंगे तो वो नहीं जाएगा। तो जो सप्लीमेंट्स है, जो डेक्सट्रिन जो है, डेक्सट्रिन इज इजिली ब्रेक डाउन, ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ये उसको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको वो लोग डाइल्यूट करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर एंड उसे वो दिया जाता है। तो ये जब डेक्सट्रिन बॉडी के अंदर जाते हैं तो देन इट इज इजिली अब्जॉर्व हो जाते हैं, डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड एक्सक्रीट भी हो जाता है। Okay, then liquid glucose is a mixture of dextrine, maltose, glucose and water. These products are a mean of giving carbohydrate in an easily assimilated from the form to the patient who are seriously ill. ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, जो कि पेशेंट्स को आर्टी फीड के थ्रू दिया जाता है। Then glycogen is also called animal starch, is similarly to starch to the amylopectin of starch, but contain many more branch change of glucose. It is rapidly synthesized from glucose in the liver and muscles. Indigestible polysaccharide include cellulose and hemicellulose, pectin, gums, and mucilase. Mucilase है girls, MUCILAGES, mucilase are मैम एक substance बार फिर of रिपीट करेंगे। MU MUCILAGES, CILA म्यूसिलेस। yes, सॉरी मैम। are sub हाँ LAGES, mucilage are substance of plants foods. म्यूसिलेज मीन्स मैम, म्यूसिलेज का मतलब क्या हुआ मैम? ये जो इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड्स है वो इंक्लूड करते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो हमें मिलता है प्लांट में, हेमीसेलुलोज विच इज फाउंड इन सीरियल्स एंड पल्सेस। पेक्टिन जो है हमारा किसमें फाउंड होता है? मैंने अभी बताया था, पेक्टिन। इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड्स अभी हम लोग ने पढ़ा है कि सेलुलोज जो है वो एनिमल्स में सेल्स में होते हैं, हेमीसेलुलोज जो होते हैं वो सीरियल्स एंड पल्सेस में होते हैं, एंड पेक्टिन जो होते हैं वो किस में होते हैं? फ्रूट्स में होते हैं। ओके, देन गम्स एंड म्यूसिलेजेस। म्यूसिलेजेस इज आल्सो पार्ट ऑफ सेल्स। ओके, म्यूसिलेज जो जैसे न्यूक्लियस होता है अपना सेल्स का, ठीक है, उसके बाद में एक न्यूक्लियस के बाद में जो एक सेल होता है, देन उसके बाद में एक सेल वॉल होती है, उसके पहले म्यूसिलेजेस एक फॉर्म होते हैं वहां पे प्लांट्स में। ओके, प्लांट फ्रूट के अंदर में द roughage bulk reduced and fibers are terms that have applied to the indigestible substances. ठीक है, roughage bulk ये भी अप्लाई करते हैं indigestible of substances में। Non-starchy polysaccharides, they consist of the polysaccharides other than starch that are insoluble in 80% of ethanol. ठीक है, नॉन स्टार्ची द नेम इटसेल्फ से जो स्टार्ची है ये 80% डिसॉल्व नहीं होते हैं इथेनॉल में। दैट इज ये बॉडी में भी अगर स्टार्च जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें अगर नॉन स्टार्ची पॉलीसेक्राइड्स अवेलेबल है तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही उसको कुक किया जाएगा, क्योंकि वो अगर हम जैसे आपने वो देखा याम,
याम जो है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कुक किया जाता है, उसको गलाया जाता है। क्योंकि अगर हमने उसको कुक बराबर नहीं किया, अगर वो हमारे बॉडी में जा रहा है तो वो नॉट इजिली डाइजेस्टेबल एंड नॉट easily absorbed by the body. Introduction to human nutrition, the principal NSP are those that comprise approximately 90% of plant cell wall. ठीक है, plant NSP is non-starch polysaccharides. Okay, so I have used this in the short form. Plants' non-starchy polysaccharides are often separated into cellulose, that is beta 1 to 4 glucon, and non-cellulose polysaccharides. Let's see the function. Sources of energy: carbohydrates are least expensive sources of energy to the body. Every gram of carbohydrate, sugar or starch when oxidized yield on the average 4 किलोकैल. ओके गर्ल्स, यहाँ पे जो सोर्सेस बताए हैं कार्बोहाइड्रेट के, दीज आर लीस्ट एक्सपेंसिव. ओके, द सोर्सेस विच वी आर टेकिंग दैट आर एनर्जी गिविंग. जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे गर्ल्स, तो कार्बोहाइड्रेट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इट शुड नॉट मोर देन 4 किलोकैल. ओके, अकॉर्डिंग टू जो भी बॉडी का जब वेट हम लोग निकालेंगे, जब बॉडी का कैलकुलेशन करेंगे किसी पेशेंट का, हम लोग कैलकुलेशन पार्ट जब देखेंगे तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट नॉट मोर देन 4 किलोकैल उसको देना है. ओके, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन. Then protein sparing action. The body use carbohydrates as a source of energy when they are adequately supplied in the diet. Pair protein from tissue building. Okay, the protein is also said to be the protein tissue building. If diet does not supply adequate calories from carbohydrate, the dietary protein is oxidized as a source of energy. This is also breakdown of tissue protein to the greater extent. The function of carbohydrates of serving as a source of energy and preventing dietary protein from where oxidized is called protein sparing action. गर्ल्स, यहाँ पे जो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन जो बताया गया है, इफ डाइट डज नॉट सप्लाई, मतलब डाइट में अगर प्रोटीन स्पेयरिंग जो एक्शन है, जो हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, अगर वो बॉडी के साथ स्पेयरिंग नहीं हो रहा है, बॉडी के साथ स्पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो विद अ सर्टेन अमाउंट हेलो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो हेलो गर्ल्स, कैन यू हियर मी? यस मैम, नाउ ऑडिबल. ओके ओके. क्योंकि ये जो स्पेयरिंग है, जब प्रोटीन बॉडी के साथ स्पेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टिश्यू रप्चर होंगे, टिश्यू का जो ग्रोथ है वो बराबर नहीं होगा. ओके, आपने ये देखा होगा कि कुछ बेबीज जो बॉर्न होते हैं, दे आर नॉट एबल टू, मतलब मन बुद्धि जिनको बोला जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि टिश्यूज जो होते हैं उनको बराबर प्रोटीन नहीं मिल पाता है. उनके जो मदर होती है, उनके डाइट में प्रोटीन का जो इंटेक है वो बराबर नहीं होता है. देन प्रोटीन का इंटेक बराबर नहीं हुआ तो वो पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पे टिश्यू मैम की वो मेच्योर जो नहीं हो ग्रोथ पाते मैम. मैच्योर नहीं हो पाते. ठीक है, यस तो मैम, यहाँ उनके पे क्या टिश्यूज होगा कि मेच्योर अगर नहीं जब होते. आपका प्रोटीन ही नहीं, हाँ, प्रोटीन ही बॉडी में नहीं जा रहा है, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा है, वीक टिश्यूज है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है. आपने ये भी देखा होगा कि अगर वो 18 इयर्स का भी हो जाता है, बट उसकी जो बॉडी होती है वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो 10 एंड 11 इयर्स का है. तो मेंटली तो वो रिटार्डेड होता है,
बट उसकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी वहां पर स्टॉप हो जाती है, तो दैट इज टिश्यू is not performing its work. Okay. Next is oxidation of fat. From beta oxidation of fat, carbohydrates are essential. If adequate amount of carb is not consumed, intermediate products of the fat oxidation are accumulated. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का भी एक फॉर्म बताया गया। अगर फैट का भी एक ऑक्सीडेशन बताया गया है। अगर फैट जो है कार्बोहाइड्रेट, जरूरी नहीं है कि हमें फैट ऊपर से ही डालना है। समटाइम्स सीरियल्स एंड पल्सेस जो होते हैं उसमें भी फैट अवेलेबल होता है। लाइक मैंने आपको कल ग्राउंडनट का एक बताया था। ओके एग्जाम्पल। तो जब ये फैट्स हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा? Carbohydrate is not in adequate amount of carbohydrate is not consumed. Intermediate products of fat oxidation are accumulated. कहीं ना कहीं वो फैट अगर हमारे बॉडी से ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा है, उसकी प्रोसेस ही नहीं हो रही है, तो ये फिर से एक लीड करेगा टिश्यू पे, रप्चर करेगा। उसके बाद एसीटोन एसिटेट एसिड एंड बीटा हाइड्रोलाइज्ड butane BUTANI acid assimilated and produce ketos। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बताई गई है गर्ल्स की। एसीटोन और एसिटो एसिड जो है उस पे बीटा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से वो प्रोडक्ट जो है वो कीटोस में कन्वर्ट हो रहा है। देन indispensability of nervous system। Okay, indispensability of nervous system is absolutely necessary, which मतलब जो प्रोटीन्स सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है which is necessary for the building of a nervous system. The main sources of energy for CNS, central nervous system, okay, central nervous system is glucose. Prolonged hypoglycemia can lead to irreversible damage to the brain tissue। अगर कहीं ना कहीं हमारे अगर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है जो रिक्वायरमेंट है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, तो कहीं वो भी डैमेज होता है। द सेम एग्जांपल इज फॉर इमेच्योर बेबी। ओके मैम उनके सायरा एंड गायरा मैम जो ब्रेन में होता है डाउन एंड सेरिब्रम एंड सेरिब्रा। इस मैम सेरिब्रम एंड सेरिब्रा बोल रहे हो ना? सायरा गायरा जो अब ऐसे वेव जैसा होता है जिसमें सायरा गायरा और yes, yes, yes. ग्रे एंड Yes. व्हाइट मैटर जो होता है वो Yes. उसमें प्रोटीन नहीं जाता है, तो मैम उस टाइम पे फिर वो मतलब उनका ब्रेन फिर वर्क नहीं करता है उतना। जितने Yes, सायरा yes, yes. गायरा बनेंगे उतना वर्क करेगा, जितना ज्यादा सायरा गायरा जितने ज्यादा हाँ, ये okay. अप एंड Yes, yes. डाउन रहेंगे ब्रेन में उतना Yes, वर्क yes. करेगा, तो वो वर्क नहीं करता तो बॉडी भी उसकी डेवलप नहीं होती है पूरी। Yes. कई बार ये सेंसरी ऑर्गन्स को भी हिंडर करता है, जो हमें पता चलता है ना कि हमें गर्म तो लग रहा है या सायरा ठंडा गायरा है, ही डेवलप नहीं होगा तो वो पूरी डेवलप नहीं होता है। मतलब Yes, ब्रेन yes, ही डेवलप नहीं हुआ। ब्रेन आर yes, डिपेंड ऑन सायरा गायरा ना। yes, 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 yes. मैम These are the main. Okay, good. The role of muscles. Carbs are the major source of energy for muscles work. Okay, during muscular contraction, girls, that is contraction, glycogen in broke down to lactic acid through glycolysis. Role of liver, this is include dextrifying action and influence of protein and fat metabolism. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पे रोल्स बताए गए हैं। रोल ऑफ मसल्स का जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्सेस है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। अगेन सेम चीज यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में होता है एंड थ्रू ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। द रोल ऑफ लिवर में यहाँ बताया गया है द एक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। Sources of energy for heart muscles. The heart muscles mainly use C6H12O6 as a sources of energy. Okay, hyperglycemia
hyperglycemia are defined adverse change in the work of the heart has been observed. Hyperglycemia is ग्लूकोज का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना. ओके, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया. जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें दो कंडीशंस होती हैं, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया. तो या तो शुगर कम बनेगा, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया, एंड हाइपोग्लाइसेमिया इज ग्लाइसीमा GLA ग्लाइसेमिया, GLYCEMIA, ग्लाइसेमिया, CEMIA, हाइपरग्लाइसेमिया. and hypoglycemia यहाँ पे शुगर हाइपो HYPO GLYCEMIA ओके. तो यहाँ पे हाइपो में जो होता है शुगर का जो ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होने लगता है. हाइपर में नो हाइपर गर्ल्स हाइपर में ज्यादा होगा, हाइपो में नहीं हाइपर में जो है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, और हाइपो में डिक्रीज होगा, कम होगा. हाँ. A defined adverse change in the work of the heart has been observed. ओके. फिर अगर यहाँ पर ग्लूकोज ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है एडवर्स हार्ट को वर्क करने के लिए. ओके, द पंपिंग सिस्टम कैन बी लो. जो बोलते हैं ना बीपी लो हो गया है, पल्स रेट गिर रहा है, these are the reasons. Okay. Synthesis of ribose from glucose. Okay, ये फॉर्मूला दिया है इसका C5H10O5 and C3H12O6. C5H10O5, that is formula for ribose, and glucose का C3H12O6. The pentose ribose is present in RNS and in many nucleotides. This is formed in the body from glucose by hexose monophosphate pathway. Okay, this is the synthesis process बताई गई है गर्ल्स. यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है and it is formed by the body for glucose. ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है. जो राइबोफ्लेविन का एक सिंथेसिस बताया गया है मोनोफॉस्फेट पाथवे में. ओके, द कन्वर्शन ऑफ फैट, excess of calories found in the diet in the form of carbs is stored as fat in adipose tissue. When the body is in need of energy, it can be released from the adipose tissue. गर्ल्स, यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि फैट्स जो है वो हमारे टिश्यूज में अब रहते हैं. कभी हम लोग अगर हमारा डिले हो जाता है, हम लोग अगर कहीं बाहर है, खाने में डिले लग जा रहा है, भूख लग रही है, लेकिन बॉडी को वर्क तो करना है, तो कई बार वो फैट ग्लूकोज जो होते हैं वो जो हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट रहते हैं वो रिक्वायरमेंट वहां से लेता है. ठीक है, अगर हम प्रोलॉन्ग ये पीरियड चलता है कि अगर भूखे रह रहे हैं और बॉडी को तो वर्क करना है, उसको ग्लूकोज भी जरूरी है, उसको ऑक्सीजन भी जरूरी है, उसको फैट की भी नीड है, और ये लेते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद ये ऐसा होता है कि हमें वीकनेस फील होने लगती है. ठीक है, इसलिए प्रॉपर टाइमिंग पे डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को वर्क और परफॉर्म करने का, उसका मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी को काम करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. बट एनर्जी नहीं मिल रही है फूड से, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं जा रहा है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं ये टिश्यूज को हिंडर करेगा. When the body is needed energy, जब बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, तो इट कैन बी रिलीज फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू के बाद जो स्टोरेज भी जो होता है, जो भी स्टोर किया गया है, तो वहां से ये चीजें बॉडी रिक्वायर्ड कर लेती है. Promoting growth of desirable bacteria. Lactose has several fructose in CGI tract. Okay, GI tract. ठीक है, it promotes the growth of desirable bacteria, some of which are useful in synthesis of beta complex vitamins. Lactose also enhance the absorption of calcium. ठीक है गर्ल्स, ये एक लैक्टोज का प्रोसेस बताया गया है. लैक्टोज इज प्रेजेंट इन अवर मिल्क
तो यहाँ पर इट इज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया। यहाँ पर बॉडी के अंदर मिल्क जाने के बाद एक बैक्टीरिया एक्शन होता है उसके ऊपर में, सम ऑफ विच आर यूजफुल फॉर सिंथेसाइज ऑफ बीटा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको सिंथेसाइज करना है। कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना बॉडी के अंदर जाने यस के यस बाद में यस लीवर में। यस यदि यस हम यस। दूध पीते हैं और तुरंत वॉमिट करते हैं तो वो तो एक बच्चा अगर दूध पीता है और तुरंत वॉमिट करता है तो वो कर्ड के फॉर्मेट में निकलता है, तो वो यस बैक्टीरिया से कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यस डाइजेशन सिस्टम में वो फिर डाइट होना चाहिए इसलिए। यस यस। ओके, क्लियर है गर्ल सबको? हम Okay. Contribution of dietary fibers. Some amount of energy in produced from the release of short chain fatty acid in the large intestine. Fiber stimulates the perishability movement. It helps in the prevention many degenerative diseases like cancer, diabetes, Parkinson, फिर अल्जाइमर्स, फिर ऑस्टियोपोरोसिस। अल्जाइमर डिजीज पता है गर्ल्स? अल्जाइमर डिजीज जो होती है मेनली फाउंड इन ओल्ड एज, जो याददाश्त चले जाना जो बोलते हैं उनको, याददाश्त जो भूल जाते हैं मैम। बीमारी होती है। यस, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो रहा है, एक तो डाइट उनका बराबर नहीं रहता है, उनके प्रोटीन बराबर नहीं जाते, ओल्ड एज के हिसाब से उनका खाना नहीं होता है, बिकॉज ऑफ टीथ दे आर द मेजर, मतलब बराबर खाना जो मिला वो तो वो कंज्यूम कर पा रहे हैं या नहीं, प्रोटीन बराबर नहीं जाए तो कहीं ना कहीं टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ये कहीं ना कहीं हमारे सीएनएस को हिंडर करता है, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंडर करता है। देन सेम चीज वो जो ब्लू कलर एंड जो ग्रीन कलर का जो बताया था अभी थोड़ी देर मैम पहले, ये वो बनना। एक्सक्यूज मी मैम, ये डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है ना, पिट्यूटरी, क्योंकि ओल्ड एज में मैम आफ्टर 70+, इसके बाद यस में एंजाइम ही होती है, तो इस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा रिलीज होना सिक्योर मतलब सिकुड़ जाता है एकदम पील, मतलब मटर के दाने जैसा होता है, तो वो सिकुड़ जाता है और फिर वो जो वो रिलीज होता है वो करना बंद हो जाता है, इसलिए फिर भूल जाते हैं याददाश्त शक्ति। हाँ, मतलब उसको क्यों हो रहा है वहां पर, तो मतलब उसको परफॉर्म ही नहीं प्रोटीन कर रहे नहीं हैं ना पहुंच टिश्यू में, रही प्रोटीन है नहीं और बाकी पहुंच दूसरी रहा है, चीजें नहीं जा रही है उसमें। न्यूट्रिएंट से नहीं जा रहे हैं, उसको बराबर एनर्जी नहीं मिल रही है उसको वर्क करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये डिजीजेस देखी जाती हैं। देन अर्थराइटिस, यू ऑल नो, ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन डिजीजेस होती है, ये बताया गया है। ओके, देन बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, द कार्बन skeleton for the synthesis of alanine, okay, ALANINE. The aspartic acids and glutamic acids are मैम provided by ALANI ALANINE, alanine, synthesis of alanine. Okay, then aspartic acid and glutamic acids are provided by glucose during its oxidation. यहाँ पे अमाइनो एसिड का सिंथेसिस बताया गर्ल्स। यहाँ पे द कार्बन स्केलेटन इन द सेंस कार्बन की जो चेन जो है उसको सिंथेसाइज होने के लिए उसमें जो एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड है वो प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। Then structural compound. Carbons are structural compound of many organisms. This includes the fiber of plant, exoskeleton of some insects and cell wall of the organism. ठीक है, आप अब ये तो हो गई बात हमारे डाइट की, बट जो एनिमल्स में देखे हैं वहां पे वो तो ये हमारा डाइट नहीं लेंगे, वो तो लेते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है उसकी जो सेल वॉल में जो प्रेजेंट होता है उसको यहाँ पर जो मेनली फाइबर्स होते हैं उनकी बॉडी में जो मेनली फाइबर्स होते हैं जो भी वो डाइट ले रहे हैं उसको भी बॉडी से थ्रू आउट होने के लिए उसको जो एनर्जी फॉर्म होती है, जो एनर्जी कन्वर्शन होता है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, द कार्बन्स आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, दिस इंक्लूड्स द फाइबर ऑफ प्लांट्स, exoskeleton exoskeleton of some insects and cell wall of microorganism.
ओके गर्ल्स, क्लियर है ये वाला सब पार्ट आपका यस पूरा? मैम, कोई किसी को डाउट है, नो कुछ डाउट पूछना मैम, है? नो मैम। हेलो। गर्ल्स जो कल मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं कल, उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? नो किसी को मैम, ऑल आर डाउट क्लियर। ग्रो थ्रू? ओके गर्ल्स, उसका प्रिंट आउट क्लियर आएगा। ओके जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर भी एक बार आप एक कोई पर्सन प्रिंट आउट उसका निकालिए, अगर नहीं होता है तो देन आई विल टाइप ऑल द थिंग्स एंड गिव इट टू यू। हाँ ओके मैम, प्रिंट आउट में नहीं आ रहा मैम वो क्लियर। नहीं आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं है मैम। ओके ठीक है गर्ल्स, आई ट्राई माय बेस्ट एंड आई सेंड इट टू, बट इस ये रेफर हो ना अभी, तो फिर बाद में मैं आपको देती हूँ। मैम हम ओके अभी रेफर्स कर लेते हैं, आप फिर बाद में टाइप करके दे देना जब आपको टाइम मिलेगा। ओके ओके नो प्रॉब्लम, आई सी दैट। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। बच्चा, वेलकम वेलकम। गर्ल्स और हेलो किसी को मैम, कुछ आपने डाउट है? एग्जाम के लिए और फीस के लिए बात किए थे मैम सर से? गर्ल्स मैंने बात नहीं की, मैं बस अभी आपकी क्लास के बाद मैं उसको फोन करके सर को फोन करके आपको लिंक भी सेंड करने के लिए बोलती हूँ। एक्चुअली गर्ल ओके कल आई मैम। एम वेरी बिजी इन सम वर्क, सॉरी। मैम कल की ओके लास्ट डेट थी मैम एक्चुअल में। ओके 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 मैं सर से बात कर लेती हूँ एक बार, ठीक है? ओके मैम। वो पवन सर, नीलेश सर का नंबर नहीं है आपके पास? नो मैम। अरे मैम मैंने कल मैंने आपको पूछा नीलेश था। सर से पर्सनली बात किया था मैम। मैं हम्म, ऑफिस गई थी, कॉलेज गई थी मैं रिजल्ट लेने के लिए। ओके तो वहां पे फिर सर ने बोला था कि आपके मैम लोगों से बात करो जो आपके फैकल्टी के हैं। मेन आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुझे बताए क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब फीस के स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम आ रही है या क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर के लिए नहीं आ रही मैम, उन्होंने एक फॉर्म भेजा था एग्जाम के, फॉर्म फिल करना था, उसके बाद हम एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे सेकेंड टर्म्स के। ओके तो वो ओके फॉर्म का लिंक नहीं है मेरे पास में, मतलब, और मेरा नंबर भी नहीं था वहां पे, मैंने अभी दिया है मेरा नंबर। अच्छा एक्चुअली अच्छा, वो इसलिए नहीं आया होगा फॉर्म बच्चा आपका, इसलिए हेलो नहीं आया होगा ये। एक्चुअली वो फॉर्म या लिंक नहीं है, वो एक नंबर दिया है जो अकाउंट पे अपने को पैसे ट्रांसफर करने हैं नहीं, पैसों का नहीं है कॉलेज। वो तो उन्होंने वो स्कैन भी करके भेज सकते हैं ना, स्कैनर भी भेजा है उन्होंने। तो मैं अपने फॉर्म। जो उमंग दाई गर्ल्स कॉलेज ग्रुप है, मैं उसमें आपको नंबर सेंड करती हूँ। दोनों भी वहाँ पे call कर लीजिए। वही सॉल्व करके देते हैं और सभी को मैं वही रिस्पॉन्ड करती है सब बातों के लिए। ठीक है ना, हाँ प्लीज भेज दीजिए। ओके हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है अनीशा, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है बच्चा एक्सक्यूज मी मैम। अकॉर्डिंग? हाँ मैम आपने कल जो टॉपिक्स बताए थे, 5 टॉपिक्स आपने हम लोगों को दिया था हम्म, असाइनमेंट्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें डाइजेशन, प्रोटीन एंड फैट, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस लिखने थे। तो यस। उसमें आपने मैम आपने डाइजेशन बताया, क्लासिफिकेशन बताया, फंक्शंस और सोर्स बताया। तो रिलेशन जो आपने बताया उसमें क्या लिखना है हमको रिलेशन में? रिलेशन में कि रिलेशनशिप कार्बोहाइड्रेट में वो उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं लिखना है उसमें। रिलेशन में ये बताना है आपको, जब आप वो बॉडी में जैसे अभी एक्शन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल हो रहा है, प्रोटीन का क्या रोल है, वो दोनों का रिलेट करना है उसको, वहां पे रिलेशनशिप बताना है कि दोनों का एक्शन क्या हो रहा है वहां पे। ओके ओके मैम। गर्ल्स गॉट इट? मतलब जैसे आपने वहां पे उसका डाइजेशन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया, ट्रांसफर बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, मॉडिफिकेशन भी बता दिया एंड एक्सक्रीशन भी बता दिया। ये पॉइंट्स तो आपके उसके, आपने उसको ब्रीफली बता दिया, बट वो प्रोटीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, आप जब उसको सर्च करोगे गर्ल्स, इजिली अवेलेबल है इवन गूगल पे भी, और अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आई एम देयर फॉर टू हेल्प यू। ओके ओके मैम। तो जैसे आप मैम प्रोटीन वहाँ एंड पे क्या, कौन से वर्ड्स? रिलेशनशिप, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप इन डाइट ऐसे करके डालो, या कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप करके डालो। ओके आ जाएगा गर्ल्स, वो आता है, या तो वो साइकिल में बताएगा मैम आपको या फिर फॉर्मूलेज में बताएगा आपको।
मोस्टली तो मैम उसमें डिस्टिंग्विश ही आ रहा है, नहीं तो फिर इसमें भी आ रहा है, तो फिर उसमें कुछ क्लियर समझ में भी नहीं आ रहा। पीडीएफ Okay. में भी फॉर्म है वो, और भी मोस्टली है, बट समझ में नहीं आ रहा उसमें एग्जैक्टली। गर्ल्स पहले तो आपको ना, जब आप सारी चीजें, ये जो 5 पॉइंट्स जो आप उसको ब्रीफली लिखोगे, 5 पॉइंट्स जो आप उसको ब्रीफली व्हेन यू राइट इट, तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कार्बन का क्या एक्शन हो रहा है एंड प्रोटीन का क्या एक्शन हो रहा है। बस आपको उसको कोरिलेट करना है, मतलब उसको कंबाइन करके बताना है कि क्या प्रोसेस हुआ वहां पे। ठीक है, आप समझ रहे हो रिलेशनशिप, मतलब उसको कंबाइन करना है, उनके 5 अलग अलग पॉइंट्स को कंबाइन करके बताना है कि प्रोटीन ने क्या एक्शन परफॉर्म किया एंड कार्बोहाइड्रेट ने क्या एक्शन किया। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो उससे एनर्जी गिविंग है, देन प्रोटीन इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग, बट प्रोटीन का है, प्रोटीन इज ऑल्सो यूज फॉर टिश्यू बिल्डिंग, राइट। ये भी एक है, ये एक वर्ड आपको वहां पे लिखना है, कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग, protein is also energy giving, but it also helps in tissue building। ये एक रिलेशनशिप, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग, फैट इज also energy giving, but some amount of fat we can use in our diet। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। मैं एक रिलेशनशिप बता रही हूँ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आया? एग्जाम्पल कोरिलेट करना है उसको, रिलेशनशिप उसका, ठीक है। यस मैम। ओके, और किसी को कुछ डाउट? नो मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।